A very warm welcome to the USAID Bulletin. I am Meena Tariq. In today's USAID Bulletin, we will be celebrating International Youth Day in Pakistan. USAID supports youth development, which helps promote a more prosperous, stable and inclusive society in Pakistan and furthers international peace and security. Around 69% of more than 225 million Pakistanis are under the age of 30, making it one of the largest youth demographics in the world and the second youngest in South Asia. Following the positive youth development principles, USAID engages youth to foster healthy relationships, build skills, assets and competencies, strengthen the business enabling environment, and transform systems so they are empowered to reach their full potential. Some of the major achievements of USAID for empowering youth include providing more than 19,000 scholarships for talented students to attend tertiary education in Pakistan over the past 9 years. In addition, more than 46,000 primary and secondary school educators have completed professional development activities with USAID's assistance. Over 35,000 youth found new or better employment following USAID-funded workforce development programs. USAID also funded the Gender Equity Program to close the gender gap in Pakistan by supporting women's economic, political and social development. USAID also awarded more than 6,600 higher education scholarships to academically talented young women in Pakistan. In addition to awarding scholarships, USAID has provided in-service training to almost 14,000 educators and has enabled aspiring teachers to earn their bachelor's or associate's degrees in education by funding more than 3,100 scholarships. USAID also helped establish advanced research centers in which Pakistani universities, along with American universities, conduct joint research for practical and policy solutions to improve energy and water resources in Pakistan. In the agriculture sector, USAID has trained over 35,000 women, including young farmers, in livestock management and horticulture, helping to create full-time jobs for women in the agriculture sector. Our reporter has put together a special report on Youth Day for You. Let's have a look. जी मीना, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, जहाँ पे दूर दराज इलाकों से, देहातों से, गांव गोट से तलबा, नौजवान, यूथ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, बेहतर मौक़े ढूंढने के लिए आते हैं। इनसे चल के पूछते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अगर तमाम यंग जनरेशन अगर अपनी बेसिक ज़िम्मेदारियों को ही समझने लग जाए ना, तो पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर जा सकता है बहुत इजीली। मिसाल के तौर पे बहुत छोटी सी चीज़ है कि सफाई सुथराई का ख्याल। अगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख सकते, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आप कोई और बड़ी चीज़ पर अमल कर सकेंगे, कुछ बड़ा कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अपनी सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ें जो आपको सिखाई गई हैं, बचपन से हमें सिखा के बड़ा किया जाता है, उनको फॉलो करें बड़े होने के बाद भी। सेकंड ये कि हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें। इट्स हाई टाइम कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करें, और अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही तो हम खुद लीडरशिप में आए। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, वो लीडरशिप में आएँ और अपने लिए खुद फ़ैसले लें। दिस इज़ दी ओनली वे दैट आई सी कि पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर चल सकता है। एज़ अ वुमेन अगर हमें पाकिस्तान की तरक्की को देखना चाहिए, तो आई थिंक मेरे मुताबिक अगर हम औरतों को पॉलिटिक्स में लेके आएँ, उनको लीडरशिप के रोल्स दें, तो आई थिंक पाकिस्तान की और ज़्यादा तरक्की ऐसे हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखा जाए तो इतनी वुमेन इन्वॉल्व नहीं हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के किरदार के लिए यूथ का हर सेक्टर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे कि करेंटली ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें तलहा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जो कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को जो उनके लाइफ में आए थे उन्होंने खुद ओन किया था, और बिना किसी भी सपोर्ट के, गवर्नमेंट सपोर्ट के, उन्होंने जो है वो 4th पोजीशन पे आए थे। सो अगर उनको सपोर्ट मिल जाता था तो वो बहुत अच्छा और परफॉर्म करते हैं। सो मैं इसी तरह अपने बाकी पाकिस्तानी यूथ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं आप उन्हें खुद ओन करें, और देखें फिर कितना अच्छा जो है वो हमारा रिज़ल्ट आता है जो हम मेहनत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम लोग और भी दूसरे सेक्टर्स में ये सब अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं इफ़ वी गो विद आवर ओन प्रॉब्लम्स बाय डीलिंग विद इट।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान की यूथ ने हमें बताया है कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। जी मीना। Thank you. It's time to have a look at what we have for you in our next bulletin. As always, thank you so much for watching. We look forward to your suggestions and your comments, and we'll see all of you again next week.